Okay, vernier calipers is used to measure two places after decimal. और vernier calipers का कुछ diagram भी समझा था हमने. There is a main scale that is fixed all the time. Main scale is fixed. Main scale is like the normal meter scale that we draw, that we use to draw the line. Another is vernier scale, then, which is connected to the movable jaw. So ये नीचे जो scale है, that is main scale, and which is like the normal scale जो हम use करते हैं 1 centimeter divisions, and each centimeter is divided into the 10 equal divisions. Each smaller length, smaller division is 1 mm. Like that. And there's another movable scale. That scale is slightly smaller than that, having generally 10 divisions or 20 divisions, which is movable. This is called vernier scale, and this is main scale. जिसका भी हमें मेजरमेंट करना हो उसको हम यहाँ बीच में लगा देते हैं. मे बी द कॉइन डायमीटर, and then we tight this jaw. The least count of vernier calipers is the smallest measurement that we can make without any error. Least count is 1 main scale division minus 1 vernier scale division. Main scale division और vernier scale division में main scale division is usually 0.1 centimeter. Vernier scale जब भी हम डिजाइन करते हैं तो usually n vernier scale division की length n minus 1 main scale division के equal होती है. Normally 9 main scale is matching with 10 vernier scale. So if 10 vernier scale division is coinciding with the 9 main scale division, one vernier scale division is 9 by 10, and then we will calculate the least count. So 1 minus 9 by 10, it becomes 1 by 10, and one main scale division is 0.1 centimeter, 0.01 centimeter. Right, so measurement करने के लिए we require two readings. First is the main scale reading, जो vernier के 0 से just पहले आती है, that is called main scale reading. Main scale reading will be the one which comes just before the 0 of verniers. In this case, maybe 2.1 centimeter. वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन में से कोई एक डिवीजन ऐसा होगा जो कोइंसाइड करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. That will be coinciding with any one of the main scale division. So कोई भी एक जो भी इसके साथ मैच कर रहा हो, the one which is exactly in alignment, 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7. Okay, suppose we can take this one is matching 1 2 3 4 5 6. So 6 division of vernier scale is in alignment with any of the main scale. जो भी इसके किसी भी मेन स्केल के कॉलम के साथ एग्जैक्टली अलाइनमेंट में होगा, दैट इज वर्नियर स्केल. वर्नियर स्केल रीडिंग इज 6 डिवीजन और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके एंड देन वी ऐड. मेन स्केल रीडिंग वाज 2.1. main scale reading becomes 0.06 centimeter. So the diameter of this coin will be the addition of the 2.1 plus 0.06, which is 2.16 centimeter. Right, so that is the method by which we can measure. अब इसमें कुछ error भी हो सकते हैं. Zero error, the possible zero error is there are two type of zero error, positive zero error or negative zero error. In the case of
वर्नियर कैलिपर्स का प्रिंसिपल क्या है? देयर इज अ स्लाइडिंग स्केल व्हिच इज स्लाइटली स्मॉलर, तो जितने भी ये गैप बीच की डिस्टेंस थी वो यहाँ तक कवर हो जाएगी एंड देन इट विल बी इंक्लूडेड इन दैट पार्ट. मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग. वर्नियर स्केल रीडिंग में जो भी कॉलम मैच करा उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके देन वी गेट वर्नियर स्केल रीडिंग. नाउ to find the diameter, we first need to check that is there any zero error in the instrument or not. So zero error कब होगी? जब किसी मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से मैच नहीं कर रहा है. If there is nothing in between the jaws, if there is nothing in between the jaws, तो उस टाइम पर zero of vernier should match exactly with the zero of main scale. If there is nothing in between, जो जीरो वर्नियर स्केल का है that should be exactly in alignment with the main scale. If it is not matching, that means there is a zero error. So when the jaws are joined, when no object is placed, the zero of main scale must coincide with zero of vernier scale. अगर वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे निकल जाता है, this is the main scale zero. If the main scale zero, sorry, vernier scale zero is ahead of the main scale zero, in that case this is called negative zero error. और इसको हम बाद में ऐड कर देते हैं. This is called negative zero error. जितनी भी ये एरर आएगी this is called negative zero error, और उसको हम कैलकुलेट करेंगे by using the normal measurement, and this negative zero error is always added. So actual value के लिए we will add, क्योंकि इतनी रीडिंग हमने मिस कर दी. x plus epsilon. पॉजिटिव जीरो एरर जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से पीछे रह जाए. If there is nothing in between the jaw, still their zeros are not coinciding. Right, so if the main scale zero is ahead of the vernier scale zero, वर्नियर स्केल का जीरो थोड़ा अगर पीछे रह जाता है, it is called positive error, और इसको हम हमेशा subtract करते हैं. नेगेटिव एरर इज एडेड एंड पॉजिटिव एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड. ये पॉजिटिव का मतलब उसको थोड़ा ज्यादा मेजर कर रहे हैं, नेगेटिव मतलब उतना हमने कम मेजर किया, और यहाँ पर x इक्वल्स टू नो जीरो एरर बिकॉज जीरो इज कोइंसाइडिंग फॉर बोथ ऑफ द स्केल. अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ जीरो एरर. अगर हम कुछ भी बीच में नहीं लगाते हैं तो दोनों के जीरो कोइंसाइड होने चाहिए. इफ इट इज नॉट कोइंसाइडिंग मींस सर्किट हैज सम जीरो एरर. निक्षय, अच्छा बस इतने लोग हैं आज. गर्व के स्कूल में कुछ प्रोजेक्ट है, और निक्षय ओके 1 2 3 4. वैभव इज आउट ऑफ द टाउन. ठीक है, तो हम ज्यादा तो नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ डाउट्स और कुछ क्वेश्चन ही कर सकते हैं इन टुडेज क्लास. 8:30 पे आपकी क्लास है, आप उसको ज्वाइन करना सर की क्लास में रिवीजन के लिए. हम्म
स्क्रू गेज पढ़ेंगे हम थोड़ा सर सा आप और। नया चैप्टर कब स्टार्ट करोगे? नया चैप्टर में थोड़ा अभी टाइम लगेगा, हमने ग्राफ कर लिए थे ना सारे। सर नया वो चैप्टर में हाँ, लास्ट यस। मोशन स्ट्रेट लाइन, यस वी डिड द ग्राफ, वी डिड डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। मैथ्स में थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री बची है, और उसके बाद हम करेंगे काइनेमेटिक्स स्टार्ट। फर्स्ट 2 चैप्टर्स हो गए हैं, मतलब कायदे से फर्स्ट चैप्टर, बिकॉज स्कूल में तो फिजिकल वर्ड पढ़ाते नहीं है। सर ग्राफ में लास्ट क्लास में वो एलिप्स रह गया था। एलिप्स रह गया था, ओके ठीक है। एलिप्स, हाइपरबोला, हाँ ठीक है, कुछ कुछ रह गए थे थोड़े से ग्राफ, वो हम करेंगे। थोड़ी सी बेसिक मैथ्स और है, वैसे तो वेक्टर्स भी करना होता है पहले, बट मैथ्स थोड़ी ज्यादा हो जाएगी तो फिर हम सेपरेटली बाद में यूज करेंगे। ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। Least count of an instrument is defined as minimum value which can be accurately measured. Okay, obviously minimum value which can be first का A. The side of cube measured by vernier scale is 10 divisions on main scale, and first division of vernier scale coincide with main scale. Okay, तो साइड लेंथ कितनी आएगी इसकी? 10 divisions on main scale है इसके, 10 into 0.1 सेंटीमीटर, प्लस जो वर्नियर है उसका फर्स्ट डिवीजन ही कोइंसाइड कर रहा है, सो 1 into 0.01 सेंटीमीटर। कितना है ये? 1.0, 0.0। नहीं ये तो 10 डिवीजन हो गया, तो 1 तो ये हो गया 1.01। इज इट करेक्ट? यस सर। 1.01 सेंटीमीटर इसकी साइड आ गई, और डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज 2.732 सर 2.66 आ रहा है। डिवाइड बाय 1.01 क्यूब, 2. 66 आ रहा है। What should be the answer? B, A, B. इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर वाला रूल भी लगाना है। You have to take care of the number of significant figures also. Yes, answer is B or answer is C? सब बी। Right, answer is B or C? सब बी। आई थिंक B. Why? सी। Why B, Devag? सर because answer is approximately 2.66. हाँ, So sir 2.65 थोड़ी नहीं सर। 2.66 से 2.7 के पास में हो जाएगा। यस सर 2.7 पर ऑप्शन में नहीं है वो सर। हाँ, इट शुड बी सी। तो हम तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर भी देखेंगे ना, 2.6. Since we are using screw gauge, we can measure accurately 2 place after decimal. 2.65। 2.65, वो शायद कैलकुलेशन में कुछ, तो आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ है या फिर इसमें नहीं, ऐसे तो 2.66 ही आ रहा है। 2.6 आ रहा है। Okay, but with the significant rule, it should have at least 3 significant again हमने यूज किया है। सर 2.65 आ रहा है सर। 2.65 आ रहा है, चेक कर लो एक बार फिर से। सर 2 डेसिमल प्लेस को लेके किया तो सर 2.65। Okay, I'm checking the answer in book. What is the answer given? Answer according to book is 2.6516. Yes, आपने कुछ गड़बड़ किया है इसका मतलब।
Final answer will be C only, no? Okay, third question. When both the jaws are touched to each other, but zero mark of vernier is right to the zero of main scale. Further, fourth mark of vernier scale coincide with a certain mark of main scale. तो ये जीरो स्केल निकालने का जीरो एरर निकालने का तरीका है. जब हमने दोनों जॉस को ज्वाइन कर दिया तो मेन स्केल रीडिंग तो जीरो है, बट वर्नियर स्केल का फोर्थ डिवीजन मैच कर रहा है, which means 0.01 सेंटीमीटर. दिस इज द जीरो एरर. तो मेरी आवाज आ रही है ना अभी? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This question number third. When both the jaws are touched to each other, touched, but zero mark of vernier scale is right to the zero of main scale. ये कौन सी एरर है, पॉजिटिव या नेगेटिव? वर्नियर का जीरो राइट साइड में, वर्नियर का जीरो राइट में, विच इज पॉजिटिव एरर. उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये मेन स्केल रीडिंग तो जीरो गई, इसका फोर्थ डिवीजन मैच कर रहा है किसी के साथ. जस्ट लाइक वी डू द मेजरमेंट ऑफ एनी डायमीटर और एनी लेंथ, वैसे हम यहाँ पे कर लेंगे. is right to the zero, but fourth mark of vernier scale coincide with a certain mark. So अगर इसका fourth division fourth mark coincide कर रहा है, so 4 into least count, zero error आ गया 0.04 centimeter. This is the positive zero error. While measuring the side of a cube, it gives 10 division on main scale, 6 division on vernier scale, coincide with main scale, find the side length. अब देखो इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं, वैसे तो 10 डिवीजन और मेन स्केल, तो ये हो गया कितना, 10 mm प्लस 6 डिवीजन और वर्नियर स्केल, तो 6 डिवीजन मैच कर रहा है, 6 इंटू 0.1 हो गया, मिलीमीटर में रखा इसलिए. और फिर हम उसमें माइनस एरर कर देंगे. तो 10 plus 0.6 minus 4, this become 10.2. प्लस नहीं होगा? बेटा पॉजिटिव एरर को हम सब्ट्रैक्ट अच्छा, करते हैं, पॉजिटिव. यस सर. नेगेटिव एरर को ऐड करते हैं. I ये thought- राइट साइड में था इसलिए, since it was on the right side, positive error is always subtracted and negative error is added. Right? Next question. When both the jaws are touched with a zero mark of vernier scale is left to the zero mark of main scale. वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट में, तो नेगेटिव एरर आ गया. फर्दर फिफ्थ मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद, अगेन फिफ्थ मार्क इज कोइंसाइडिंग विद वन ऑफ द मेन स्केल, सो 5 into 0.1, और ये आ जाएगा नेगेटिव एरर, सो दैट विल बी minus 0.5 mm. स्क्रूज हमने पढ़ा नहीं, अभी स्क्रूज पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे. लेट्स डू द क्वेश्चंस, मोर क्वेश्चंस ऑन वर्नियर कैलिपर्स. यस, this one. Question number 11. 2 centimeter on the main scale of vernier calipers is divided into 20 equal parts. 20 division of main scale coincide with 16 division. Find the least count of vernier caliper. Least count is 1 main scale division minus 1 vernier scale division. 1 main scale division, यहाँ पर 20 vernier scale, ये वर्नियर होना चाहिए, थोड़ा मिसप्रिंट है.
20 divisions matches with 60. So one vernier scale will be 16 by 20. 1 minus 4 by 5 is 1 by 5 MSD. And 1 upon 5 into main scale division is 2 by 20 centimeter. That becomes 0.02. लीस्ट काउंट का फॉर्मूला था 1 मेन डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन में. सर आपने लास्ट में अंडरस्टूड. 2/20 ये गिवन था ना 2 सेंटीमीटर को 20 में डिवाइड किया. सो 1 what is the value of one division, one main scale division? That will be 2 by 20 or 1 by 10. The value of main scale division is given in this language that 2 centimeter of main scale is equally divided into 20 divisions. So one division value is 2 by 20. Answer is C. Answer is C. Okay. Very nice. Question number 17. You can see these are questions asked in the JEE as well, 17 and 18. आप लोग ना अपने doubts रखा करो इस class के लिए. You should practice, and when you do practice, there will be doubts. So you'll have to send me doubts from your questions. Question number 17, 18. You can see it is based on the same formula. Least count calculate करनी है पहले. A vernier caliper has 1 mm marks on the main scale. It has 20 equal divisions on the vernier scale, which match with 16 main scale division. ये भी क्या हमने last question वही है? Yes, Same. 0.02. 0.2 millimeter. ये millimeter है. Yes, sir. 0.2 millimeter. In the case of centimeter, this have been 0.02. Question number 18. Diameter of a cylinder is measured using a vernier calipers with no zero error. It is found that zero vernier scale lies between 5.1 and 5.15. So that means the main scale reading is 5.10, right? जो मेन स्केल का जीरो है वो दोनों इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है. सॉरी, वर्नियर का जीरो इट लाइज बिटवीन 5.10 एंड 5.15. तो इससे एक इंफॉर्मेशन और मिल गई हमें. ये जिन दोनों के बीच में लाई करता है उसके लेफ्ट साइड वाली रीडिंग लेते हैं. तो लेफ्ट साइड मींस 5.10. 5.10 सेंटीमीटर हो गई मेन स्केल रीडिंग. वर्नियर स्केल में 50 डिविजन्स है एंड 50 डिविजन्स की वैल्यू है 2.45. So we'll find out the value of one division. What is the value of one main scale division? थोड़ा सा question language wise tricky है. सब कुछ information यहीं पे given है. 5.10 और 5.15 ये दो है. इसके बीच में कोई दूसरा और. So 0.05 centimeter. This is the one main scale division. और one vernier scale division की वैल्यू आ जाएगी. वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आ जाएगी 2.45 डिवाइडेड बाय 50. नव्या समझ आ रहा है? थोड़ा कम आ रहा है शायद. सर आ रहा है, समझने की कोशिश कर रही हूँ. आ रहा है ना? वर्नियर कैलिपर्स आपने पढ़ा था लास्ट क्लास? पढ़ा था शायद. यस सर, मैंने तो पहले भी लाइक स्कूल में पहले कर रखा है, तो ओके. अच्छा, मोर और आपका लेस आता है मुझे बेसिक. हाँ आईसीएसई बोर्ड था ना आपका? अभी भी है? हाँ जी सर. आईसीएसई बोर्ड. राइट. यस. ओके. सो वन मेन स्केल डिवीजन कैसे निकाला है? इसमें डायरेक्टली ना लिख के ये लिखा हुआ है कि दो कंसेक्यूटिव 5.10 एंड 5.15 है. सो बीच का गैप 0.05. दैट इज द वन मेन स्केल डिवीजन वैल्यू. वर्नियर स्केल में टोटल 50 डिविजन्स है, व्हिच इज कोइंसाइडिंग विद 2.45.
उससे एक डिवीजन की वैल्यू निकल आएगी. 24th division of coincide with one of the main scale division. So main scale reading is 5.10 और उसमें हम ऐड कर लेंगे 1 ईयर स्केल की रीडिंग की वैल्यू. कितना आएगा आंसर? We have to find the least count. Least count is 1 MST minus 1 VST और फिर उसको 24 से मल्टीप्लाई करके 5.10 में ऐड कर देंगे. Yes. What the answer? Anyone? Question number 18. What is it? 5.124. 5.124. That means option number B. I am not Option sure. I number B. think it's 5.124. Now, why do you think you have to calculate? I What is the value of calculated. least count? It's 0.001. 0.001 multiplied by 24 plus 5.1. Yes, it will be 5.124. Absolutely. Devag, 5.124. No, sir, I think I did some mistake. Okay, check. 50 डिवीजन से हमने एक डिवीजन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. 1 MST minus 1 VST is the least count. Which is coming out 0.001 centimeter. Main scale reading plus vernier scale reading is the actual diameter. Got it, Navya? Yes, sir. I got it. Debarg, what was your mistake? Yes, sir, मैंने सर least count में से गड़बड़ कर दी थी. Okay. हाँ. So ये तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन, उसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए. राइट. ठीक है, ये 39 is a similar question as we did. Mass is given and density हमें कैलकुलेट करनी है so that you can do in homework. अब हम देखते हैं स्क्रू गेज. वैसे तो लोग नहीं है आज, बट ठीक है, कोई नहीं, विल नॉट डू इन द क्लास. स्क्रू गेज में भी सिमिलरली देयर आर टू स्केल. वन इज ऑन द मेन स्केल. So screw gauge का जो प्रिंसिपल है that is like the principle of, मैं इसका डायग्राम कर लेता हूँ. This is the screw gauge. स्क्रू गेज का प्रिंसिपल है एग्जैक्टली सिमिलर टू दी स्क्रू. जब हम स्क्रू और नट बोल्ट टाइट करते हैं, so there is a main scale. Main scale is this one.
तो इन दोनों के बीच में हम किसी थिन वायर को या किसका भी डायमीटर निकालना है उसको हम यहाँ पे लगा के और फिर हम इसको स्क्रू जैसा टाइट कर देते हैं। अब स्क्रू में जैसे क्या होता है, स्क्रू में होते हैं थ्रेड्स, नट और स्क्रू में देयर इज सम थ्रेड। वन कंप्लीट रोटेशन करने पे वो एक थ्रेड के बराबर आगे मूव करता है। वन कंप्लीट रोटेशन it move exactly equal to the one division. It is exactly equal to one division, right? अब एक रोटेशन करने पे एक डिवीजन। Similarly here also, इस पे जो सर्कुलर स्केल है, that circular scale has usually 100 divisions, ऐसे आगे से पीछे, this one like this. This is a circular scale. So जब इसके जॉस के बीच में कुछ भी नहीं होता, there is nothing between these two screw, no wire, दोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। So मेन स्केल में जो सेंट्रल लाइन है, this one matches exactly with the zero of this circular scale. ये जो लाइन दिख रही है horizontal वाली, this line, this is 0, 1, 2, this is the main scale. It matches exactly with the 0, 10, 20, 30, 40, 80, 90 and 100. Like this. So जब 0, 0 से मैच करता है initially there is no zero error. एक कंप्लीट रोटेशन करने पे ये एक मेन स्केल के बराबर जो डिवीजन है जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं पिच। वन कंप्लीट रोटेशन करने पे एक पिच के बराबर की लेंथ ही आगे फ्री होती है या मूव होती है। तो जितने भी नंबर ऑफ डिवीजन, सपोज n नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन है, 0 से स्टार्ट करके हम उसको 100 डिवीजन तक रोटेट करेंगे तो इसकी वैल्यू एक मेन स्केल डिवीजन के बराबर होती है। एक मेन स्केल डिवीजन के बराबर ये जो इसके एक्सिस है, जो रॉड है वो आगे मूव करता है। जैसे हम इसको नट को रोटेट करते हैं तो ये आगे अंदर इसके अंदर मूव करता जाता है, then it goes further by rotation. So एक कंप्लीट रोटेशन होने पर ये एक थ्रेड के इक्वल मूव करता है। सिमिलरली ऑन वन कंप्लीट रोटेशन फ्रॉम 0 to back to 0 it will be moving exactly equal to the 1 mm, जो मेन स्केल की वैल्यू है जिसको हम यहाँ पे पिच बोलते हैं। यूजुअली जो डिजाइन होता है उसमें 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन्स होते हैं। 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन्स मूव करने पे वो एक मेन स्केल डिवीजन के बराबर आगे की तरफ मूव करेगा। 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन तक रोटेट करते हैं 0 से वापस 0, देन इट मूव्स इक्वल टू वन पिच। पिच इज एग्जैक्टली इक्वल टू द लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, राइट? ओके, सो लीस्ट काउंट जब हम बात करते हैं किसी भी वर्नियर कैलिपर्स की, लीस्ट काउंट होता है वैल्यू ऑफ दिस वन सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये 0 से 100 तक, मतलब 0 है फिर रोटेट किया 1, 2, 3, 4। लीस्ट काउंट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ वन सच डिवीजन, सो इट इज इक्वल टू पिच। पिच मतलब कि वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन्स, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच की वैल्यू वन मेन स्केल के बराबर होती है, दैट लेंथ जितना वो आगे मूव करता है एक कंप्लीट रोटेशन करने में, दैट इज कॉल्ड पिच। 1 सेंटीमीटर इट मूव्स, सॉरी 0.1 सेंटीमीटर इट मूव्स। एक मेन स्केल की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर, हमने 100 डिवीजन्स का रखे हैं, so it will become 0.001 centimeter. This is the least count of screw gauge, right? Least count of screw gauge. अब मेजरमेंट करने के लिए जिसको भी हम यहाँ पे लगाएंगे बीच में, सपोज हमें इस थिन वायर का डायमीटर चाहिए, तो एक तो मेन स्केल पे रीडिंग आएगी। मेन स्केल पे जैसे यहाँ पे जो इस एक्सेस के सर्कुलर स्केल की रीडिंग से पहले आती है, जैसे यहाँ पे 3.1,
3.1 सेंटीमीटर, दैट इज द मेन स्केल रीडिंग। जो इसके मेन स्केल की जितनी रीडिंग बाहर निकल के आएगी दैट विल बी डिफाइंड एज मेन स्केल रीडिंग। जैसे यहाँ पे 2.1, दैट मेन स्केल रीडिंग, उसमें हम सर्कुलर स्केल की रीडिंग ऐड कर देंगे। सर्कुलर स्केल में नाउ वी हैव टू टेक दैट कॉलम जो सेंट्रल लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा हो। दिस विल बी कॉल्ड सर्कुलर स्केल रीडिंग। ये 0 से 100 तक रोटेट करते करते जहां पर भी रुक जाएगा, उसका जो भी स्केल, जो भी कॉलम मैच कर रहा होगा विद द सेंट्रल लाइन, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर द diameter of this thin wire will be equal to main scale reading। मेन स्केल रीडिंग जितना कि उसका रोटेट होके दैट एक्सेल जितना वो आगे तरफ बाहर आएगा, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग इज द वन विच इज इन अलाइनमेंट विद द सेंट्रल लाइन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो अगर हम इस जिस डायग्राम के लिए गिवन है 3.1 सेंटीमीटर प्लस 31, 32 इज मैचिंग। 3.1 सेंटीमीटर इसका था मेन स्केल रीडिंग, 32th कॉलम इज मैचिंग, इसको हम इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दें, so that become 3.132 सेंटीमीटर फॉर दिस डायग्राम जिसकी ये इमेज है। इन दैट मेजरमेंट द डायमीटर ऑफ वायर या जो भी हम मेजर कर रहे हैं दैट इज 3.132 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज में एक मेन स्केल होगा जो कि फिक्स रहता है नीचे इस पे ऑन दैट लेंथ विच विल बी फ्रीइंग। जैसे रोटेट करते जाएंगे वैसे वैसे ये लेंथ बाहर आती जाएगी। एंड देयर इज अनदर स्केल दैट इज सर्कुलर स्केल, एंड सर्कुलर स्केल रोटेट्स। जैसे जैसे हम रोटेट करेंगे एक कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल विल मूव दिस मेन स्केल exactly equal to 1 division, also called as pitch। Okay, Yes, sir. understood? Debarg, Navya, Yes, sir. Achman? Yes, sir. Okay. So एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। अभी बहुत सारे लोग आउट ऑफ स्टेशन है। We will do the question from screw gauge। लैब में करोगे then obviously you will understand it much better। यस, ये थोड़ी इसकी वर्किंग है वो आप छोड़ दो। जैसे जीरो एरर्स में थी वैसे जीरो एरर्स में भी होगी अगर 0 0 मैच नहीं करता लाइन के ऊपर या नीचे। क्वेश्चन नंबर 7, इन 4 कंप्लीट रोटेशन द डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ऑन लिनियर स्केल इज 2 mm। 4 रोटेशन में 2 mm है, एक रोटेशन में 2/4 दैट इज 0.5 एंड इट हैज 50 डिवीजंस। तो 0.5 is the pitch divided by 50, that will be the least count। 0.05, एक मिनट इधर पीछे भी था शायद कुछ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, circular scale of a micrometer has, micrometer is another name for screw gauge। Circular scale of micrometer has 50 divisions, pitch is 0.5। While measuring the diameter, main scale reads 1 mm and for 24 division of circular scale coincide with the reference line। करो क्वेश्चन नंबर 5 and 6। Yes, question number 5। Done। Question number 6, देखो least count is 0.5/50,
Measuring the diameter wire, the main scale reads 1 mm. 1 mm plus 24 into least count. 1.24 सोचना ही नहीं है. No, it is 0.24. 6 का आंसर B. सर 0.5 अपॉन 50 क्यों होगा लीस्ट काउंट? 50 तो डिवीजन है ना? लीस्ट काउंट का ही फॉर्मूला था पीछे देखो. हाँ वो फॉर्मूला Least count is pitch रोटेशन divided by total number of circular divisions. अच्छा रोटेशन. पिच क्या होता है? एक रोटेशन में कितनी डिस्टेंस मूव होती है, दैट इज कॉल्ड पिच. पिच इज द डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट रोटेशन. So pitch is 0.5, circular scale has 50 divisions. Least count will be 0.5 by 50. Point 5 by 50 is least count, or main scale reading 1 mm. 24 into least count will be added 1.24 mm. Yes. बेटा आ गया ना ये बी ऑप्शन. रिवर नव्या. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया था हमने. क्वेश्चन नंबर 8 एक ही जैसा है वैसे तो सारे क्वेश्चंस. सर मेरा नहीं आया पिछले वाले को 1.24. उसका लीस्ट काउंट कितना आया? लीस्ट काउंट 0.01 आ रहा है. सेंटीमीटर में ना, ये आंसर मिलीमीटर में है. अच्छा ओके. यस, दिस इज इन मिलीमीटर ना, दैट्स व्हाई. गॉट इट? यस सर. आया कि नहीं आया बेटा? आ गया आ गया. हाँ. ओके, क्वेश्चन नंबर कर रहे थे हम नेक्स्ट. सॉरी, 8. क्वेश्चन नंबर 8. राइट. It will be similar. अगर screw gauge is 1 mm, pitch is 1 mm, 100 division circular scale 1 by 100, वहां से least count आ जाएगी, and there is no zero error. Main scale read 1 mm, so 1 plus 48 into 0.01. 1.48 mm is the diameter. Length पता है, volume निकाल लेंगे, and then we can find pi r square L. We have to convert this into the standard significant figure. These three places होने चाहिए after decimal. B C D में कुछ भी हो सकता है? नहीं. B C D में कुछ भी हो सकता है. रेट था क्या समझ में? आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑप्शन?
D 0.036. Question number 8 answer is B 0.086. हाँ ये जो हमने कैलकुलेट किया वो डायमीटर है, तो उससे रेडियस निकालेंगे बाय 2 करके एंड देन पाई आर स्क्वायर एल. इट शुड बी बी ऑप्शन. ओके, आया किसी का आंसर बी? यस सर आ गया. देवर्ग, नव्या, सर कैलकुलेशन बढ़िया है थोड़ी सी। ओके. आंसर भी आएगा, चलो छोड़ देते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. 9th एंड 10th इट इज लाइक द जीरो एरर. सर जैसे जीरो कैलकुलेटर से एरर था, कैलकुलेशन कर सकते हैं ना ऐसे अभी के लिए भी? कर लो अभी के लिए, बट एग्जाम में तो नहीं मिलेगा. अभी थोड़ा टाइम बचाने के लिए कर सकते हो, बट ट्राई नॉट टू बिकम हैबिचुअल. ओके. ये सेंट्रल लाइन है. अगर सपोज हमने कुछ भी नहीं लगाया आगे, देयर इज नथिंग, बोथ द जॉज आर जॉइंड, एंड इन दैट केस द सेंट्रल लाइन के साथ जो नंबर मैच करे दैट्स नॉट जीरो, इट इज सम पॉजिटिव. मतलब जीरो इधर आ गया. द लाइन दैट मैचेस विद द सेंट्रल is not the zero exactly, then it is called positive zero. As a 0, 20, 30, these are the markings on the scale. So when this zero is below the central line, below the reference line, it is called positive zero error. अब इसके लिए जो जितने भी हैं, suppose this is 5, so suppose this is matching exactly with 5, तो 5 circular scale division में least count से multiply कर देंगे. That will be the value of this error. So it is plus 0.005 centimeter. When the zero of circular scale is below the reference line. Zero of circular scale is below the reference line then. That is called positive zero error. Positive zero error को हम हमेशा actual calculate करने के लिए measured value में subtract करते हैं. Positive zero error तब होगी जब circular का zero main reference line के zero से नीचे. When the zero of circular scale is above, तो ये 95, ये 90 और 100 से किसी के बीच में मैच कर रही होगी. ये था 90, नीचे इधर कहीं 80, ऐसे पीछे की तरफ 30, 40, 50, 60. तो when the central line, zero is above the central line, the 90, 10, 20, 80, so on. When the zero of circular scale is above the reference line, that is called negative zero error. When zero of circular scale is above the reference line. अब इसमें किससे मैच करेगा? कुछ 95 and 96 कॉलम से मैच करेगा. So 96
100 से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100 minus 96 and then we multiply with least count. That will be the error. Since it will be a negative error, minus 0.00004 centimeter. इसको हम बाद में एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मेजर्ड में ऐड कर देते हैं, राइट? तो जितना ये गैप रह गया यहाँ से 90 और उसके बीच में, दैट वी हैव टू मेजर, व्हिच इज 4 सेंटीमीटर, व्हिच इज इक्वल टू 4 डिवीजन ऑन पॉजिटिव जीरो एरर when circular scale 0 lies below the reference line. Negative zero error when the zero of circular scale is above the reference line. फिर हम zero error को calculate करके accordingly we will add or subtract. If it is a positive error then we subtract. If it is a negative error then it will be added. Positive error को subtract करते हैं, negative error को add करते हैं. ठीक है? Okay, so these are these two questions on the screw gauge. Question number 9 and question number 10. Sir, The pitch एक of मिनट screw वो gauge is 1 mm and there are 100 divisions on the circular scale. When the gap is just closed, 8th division of circular scale coincides. So that is positive zero error. Calculate the reading and then, okay, third surface area. So again, you can use calculator to find its value. इसमें positive zero error तो subtract करेंगे, नीचे वाले में 95th division match कर रहा है. So difference will be of 5. Difference will be of 5 and then we can use that. Done. मतलब इसको आप कैलकुलेटर से यूज कर लेना, सॉलिड कैलकुलेटर. एंड दिस क्लास इज फॉर डाउट्स, सो प्लीज ब्रिंग योर डाउट्स आने चाहिए. राइट? ओके देन आंसर बताता हूँ मैं. आंसर मैच करें. 9th का आंसर आएगा A. 9th आंसर इज A and 10th आंसर इज B. So we did screw gauge and vernier calipers. Next class में हम करेंगे जो थोड़े से ग्राफ बचे हुए थे, ellipse and hyperbola, a bit of trigonometry, and then we can start vector or we can start kinematics, whichever you want. Right? Yes, sir. Yes. Okay then, that's it for today. इस क्लास के लिए डाउट्स लेके रखा करो, ये डाउट की क्लास है. Doubts from these DPPs and any other book, any other question bank, any other resource. Okay, sir. Right. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir.